تو ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب. 5 طیارے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیا ہے، جبکہ بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر شکست کو تسلیم کر لیا ہے. تو پاکستان کی جانب سے بھارت کے بزدلانہ حملے کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے بالآخر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی ہے. پاکستان نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، بھارت کا گھمنڈ پاش پاش کر دیا ہے. پاکستان ایئر فورس کے شیر دل پائلٹس نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 5 لڑاکا طیارے اور 1 ڈرون مار گرایا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، شاہینوں نے بھارتی طیاروں کو بھارتی فضائی حدود میں ہی زمیں بوس کیا. پاکستانی فوج چاہتی تو 10 سے زائد بھارتی طیارے مار گراتی، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. ہندوستانی میڈیا نے 3 بھارتی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا. CNN کہتا ہے کہ تباہ ہونے والے بھارتی طیارے فرانسیسی ساختہ تھے. بھارت کے بزدلانہ حملوں کے جواب میں پاکستان کے دندان شکن جواب. پاک افواج بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئی. ہندوستانی فوج کا بریگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹر ملیا میٹ کر دیا. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے دشمن کی کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں. بدوری اور پیر کانٹی سیکٹر میں 100 کے قریب بھارتی فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے. بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا، پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. دشمن کے ہوش ٹھکانے آ گئے. کنٹرول لائن پر سفید جھنڈا لہرا دیا. پاک فوج نے کنٹرول لائن پر دشمن کی پوسٹوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بھارتی فوج نے چورا کمپلیکس پوسٹ، چکوٹھی سیکٹر اور وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانچل فارورڈ پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا. بھارتی فوج نے جوابی کارروائی کے نتیجے میں سفید جھنڈا لہرایا اور شکست کو تسلیم کر لیا. بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں کا پاک فوج منہ توڑ جواب دے رہی ہے. پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کے نتیجے میں بھارتی فوج بوکھلاہٹ اور خوف میں مبتلا ہو چکی ہے. خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارتی فوج نے سانگھڑ پوسٹ چڑی کوٹ سیکٹر پر بھی سفید جھنڈا لہرا دیا ہے. پاک فوج کا LOC پر دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. اس سے قبل لیپا چورا کمپلیکس پوسٹ چکوٹھی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرایا تھا. جنگ کے دوران سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست تسلیم کرنا ہے. لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. لائق بتائیے گا، ایک کے بعد ایک پوسٹ کے اوپر سفید جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. بالکل جی، ایک اور سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے اور اب لیپا چورا کمپلیکس پوسٹ اور چکوٹی سیکٹر کے بعد یہ ہے سانگڑ پوسٹ جو بالکل چیری کوٹ سیکٹر میں بالمقابل ہے. بھارتی فوج کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. پاکستان آرمی کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جو دشمن کی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں یہ ایک اور سفید جھنڈا سامنے آیا ہے. جنگ کے دوران سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست تسلیم کرنا ہے. یہ پہلے بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور مزید بتا رہے ہیں کہ مزید سفید جھنڈے لہرانے کا سلسلہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے جاری ہے. کافی بھاری نقصان پہنچ رہا ہے پاک فوج کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں، اور دیگر جو فرنٹس ہیں اس کے اوپر بھی مسلح افواج کی طرف سے بھرپور جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو بھارت کی طرف سے سفید جھنڈے لہرانے یعنی شکست تسلیم کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائیوں پر پاک فوج کا مؤثر جواب رنگ لا رہا ہے. مؤثر جواب دیا جا رہا ہے بھارتی افواج کو پاکستان کی جانب سے. بہت شکریہ لائق الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. رات کی تاریکی میں بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر بزدلانہ حملے کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس بریفنگ میں بتایا بچوں اور خواتین سمیت 26 معصوم پاکستانی شہید اور 46 زخمی ہوئے. بھارت نے مظفر آباد میں مسجد بلال، کوٹلی میں مسجد عباس، احمد پور شرکیہ میں مسجد سبحان اللہ کے ساتھ مریدکے میں بھی مسجد کو نشانہ بنایا. بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پارک پروجیکٹ میں نوسہری ڈیم کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا. یہ ناقابل قبول اور حد سے تجاوز ہے. کیا بھارت جانتا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت نے جب یہ بزدلانہ کارروائی کی اس وقت بہت سی ملکی اور غیر ملکی پروازیں پاکستان کی فضائی حدود میں موجود تھیں. بھارت نے ہزاروں مسافروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا. بھارت نے پاکستان کی جرری قوم کو للکارا ہے. اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا. پاکستان جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس جارحیت کے جواب کا وقت اور مقام ہمارا انتخاب ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت نے بزدلانہ طریقے سے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا. اس جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا.
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में हमला किया, पाकिस्तान की जरी कौम को लिलकारा है। उसकी इस गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाएगा। क्या भारत ये नहीं जानता, वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी, दैट वी in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you feared that. Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. फौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान रेंजर्स ने शकरगढ़ सेक्टर में भारतीय फौज का ड्रोन मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने सुबह के वक्त ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ है। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जारी है। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। कमेटी के फैसलों और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक हैं। भारत को भरपूर जवाब देने पर कमेटी ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। ज़राए बताते हैं कि इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। सिफारत इक़दामात, आलमी बरादरी से राबतों और इस हवाले से मुशावरत जारी है। भारतीय हमलों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर अस्करी हुकाम ने ब्रीफ किया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली गौर किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान ने भारत के हमलों का फौरी जवाब देकर भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें इस इजलास के बारे में बताएंगे। बताइए अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में ये इंतहाई अहम तरीन इजलास हो रहा है। इस इजलास में जो रात को भारत की तरफ से जारहियत की गई और उसका पाक फौज ने जिस मौसर अंदाज से जवाब दिया है, उस पर तफसीली तौर पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ब्रीफ कर रहे हैं। बिलखसूस जो भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराए गए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, फौजी जो चौकी हैं उनको तबाह किया गया, उसकी तफसीलात और उसके साथ साथ जो शहादतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों की, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उसकी तफसीलात से भी इस कमेटी को तफसीली तौर पर आगाह किया जा रहा है। सफारती सतह पर जो राब्ते हुई हैं और हुकूमत पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से यकजहती का इज़हार किया गया है, वो भी तफसीली तौर पर इस कमेटी में ज़ेर गौर आएगा। लेकिन इस कमेटी का जो फोकस है बुनियादी तौर पर वो ये है कि भारत ने जो ये कार्रवाई की है रात गए, उसका अब जवाब किस अंदाज से देना है और इस हवाले से हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इब्तिदाई अपने रिमार्क्स दिए हैं इस इजलास में और उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके जो बर वक्त जवाबी कार्रवाई है भारतीय जारहियत की, उसकी भी सताइश की है और इस अज़म का इरादा किया है कि पाकिस्तान की कौम मुसल्लह अफवाज मिलकर भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो हिकमत पता की जाएगी जिसकी बाकायदा अनाउंसमेंट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से की जाएगी बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट। अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे। अजहर, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके बताया गया भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारतीय हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। भारत की जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल रियासती ज़वाबित के मनाफी है। भारत को खबरदार करते हैं ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा बताते हैं पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह किया। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर भारतीय जारहियत के जवाब का हक रखता है। भारतीय हमलों के बाद बहावलपुर और शकरगढ़ के अवाम का भारत के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं हम हर तरह से पाक अफवाज के साथ हैं। पाक अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगी।
जंग भारत ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। आर्मी इंशाल्लाह इन्हां को दसे सी जवाब देंदी पई है और इंशाल्लाह सारे जहन्नम वासिल थी सन। असां सारे अपना जाना दे नजराने देवन वास्ते तैयार हैं। असां लड़सूं, मोदी को जवाब देसूं। इंडिया ने रात के अंदर जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी कौम पाक फौज की पुश्त के ऊपर खड़ी हुई है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, इसका हिसाब पाक फौज अब पूरा लेके रहेगी। भारत ने हमेशा बुज़दिलाना रवैया अख्तियार किया और ये इंडिया ये बात जान ले, शुरू उन्होंने किया है कि खत्म हम करेंगे। करारा जवाब दिया पाक फौज ने और हमेशा देंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट इन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ ठहरे हैं, शाना बशाना हमेशा साथ रहेंगे। रात के अंधेरे में जो हमला किया उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जवान पाकिस्तान की फौज मुत्तहिद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा खून एक एक कतरा, हमारे बच्चों का एक एक कतरा पाकिस्तान के लिए हाजिर है। चीन का जवाब पत्थर के साथ देते रहेंगे। इंडिया ने जो रात के वक्त पाकिस्तान पे हमला किया है उसको मुंह की खानी पड़ी है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हमें अपने आप के साथ बम बांध कर टैंकों के नीचे जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो मुरीदके में भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें 3 शहरी शहीद हुए। जयवकुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इलाके के अवाम पुरजोश हैं। उनका कहना है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। इस बारे में बताएंगे बाबर खान। जी, बुज़दिल दुश्मन भारत ने 6 और 7 की दरमियानी शब पाकिस्तान के मुल्क पर हमला किया, जिसका दंदान शिकन जवाब पाक फौज ने दिया और इसमें पाक फौज ने उनको भारी नुकसान पहुंचाया। एक जो अटैक यहाँ मरीदके में किया गया, अल अजीजिया हस्पताल की मस्जिद को निशाना बनाया गया। अब देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो जिस मुकाम पर निशाना बनाया गया वो मुकाम आप देख रहे हैं। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद है, इमदादी काम यहाँ पर जारी है। PGISPR के मुताबिक 3 जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं और अभी यहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। रेंजर्स के जवान जो हैं और जो पुलिस और इसके अलावा जो कमांडोज हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस इलाके को कार्डन ऑफ किया हुआ है और यहाँ पर जो तमाम निगरानी कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद जो यहाँ की अवाम है उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। उनका यही कहना है कि वो हर वक्त पाक फौज के साथ है। यहाँ पर लोग इतने पुरजोश हैं कि वो हाथों में फूल की पत्तियाँ लेकर आए जो उन्होंने रेंजर्स के जवानों पर और मीडिया पर और जो पुलिस पर फेंके और उनको खराज तहसीन पेश किया। जी, बुज़दिल दुश्मन भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। सुभान अल्लाह मस्जिद की किसी नो गो एरिया में नहीं बल्कि अहमदपुर शरकिया से लाहौर जाने वाली मरकजी सड़क पर है। बात करें ARI न्यूज के नुमाइंदे चौधरी असलम से जो मौका पर मौजूद हैं। जी चौधरी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद शरकिया रोड पे, जहाँ पे गुज़श्ता रात मस्जिद सुभान को बुज़दिल दुश्मन भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो मेन अहमदपुर शरकिया रोड है जो लाहौर कराची को अटैच करती है। यहाँ पे दिन भर ट्रैफिक चलती है, उसके साथ साथ रिहायशी आबादियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो जिन लोगों को निशाना बनाया गया भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए, ये जो फुटेजेस ही काफ़ी हैं कि यहाँ पे कौन से दहशतगर्द हैं। कोई नो गो एरिया नहीं है। यहाँ पे मासूम जो बच्चे शहीद हुए हैं, पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और पाक फौज के साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम भी हमजुबान है भारत को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और आलमी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये वो जगह है जहां पे भारत ने शब खून मारा और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। जी, कोटली में भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वाले बहन भाई की नमाज जनाजा नक्याल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद बताएंगे मुबश्शिर चौधरी। जी बिल्कुल, 2 बहन भाई जिनका ताल्लुक कोटली केनवाई इलाका नक्याल से था, जो तालीम हासिल करने के लिए कोटली शहर में रिहाइश पजीर थे। गुज़श्ता रात जो है वो भारतीय गोलाबारी की वजह से दोनों बहन भाई शहीद हो गए। उनको आबाई इलाके नक्याल में लाया गया और यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़रा
वकला, सिविल सोसाइटी, साफियों की बड़ी तादाद मौजूद। पूरा जो है नक्याल बाजार जनाजा की वजह से बंद कर दिया गया है। शहरियों का यही कहना है कि मोदी जो है मासूम शहरियों का जो कातिल है उसको इनका हिसाब जरूर देना होगा। भारत का बुज़दिलाना हमला, पाक फौज ने एक और ड्रोन मार गिराया। पाक फौज ने कोटली सेक्टर में भारतीय फौज का ड्रोन मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज की ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश जारी थी। इससे कबल बरनाला शकरगढ़ सेक्टर में भी भारत का ड्रोन मार गिराया गया था। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का भरपूर जवाब देने में मसरूफ है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा किया और एमएस बीवीएच और कमांडिंग ऑफिसर सीएमएच बहावलपुर कोर कमांडर बहावलपुर के हमरा थे। कोर कमांडर बहावलपुर ने भारतीय बुज़दिलाना हमले में जख्मियों और मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात की। कोर कमांडर ने जख्मियों की खैरियत भी दरियाफ्त की। कोर कमांडर ने फौजी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिदायत की कि जख्मी शहरियों को तमाम जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। इस मौके पर अस्पताल में मौजूद पुरजोश शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मासूम शहरियों पर हमला भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। कहते हैं कौम और अफवाज पाकिस्तान दुश्मन से निमटना जानते हैं। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई की, बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। भारत जान ले, शुरू उसने किया है, खत्म हम करेंगे। दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। हमारे फाइटर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के जज्बे के तहत उन पर अटैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको गिराया और उन्हें नेस्त नाबूद किया। हम अपनी फौज को जो है ना पाक सलाम कहते हैं। ये हमारी फौज एक नंबर की फौज है। साड़ी आर्मी इंशाल्लाह इन्हां को दसे सी जवाब देंदी पई है और इंशाल्लाह सारे जहन्नम वासिल थी सन। असां सारे अपना जाना नजराने देवन वास्ते तैयार हैं। असां लड़सूं, मोदी को जवाब दे। इंडिया ने रात के अंधेरे के अंदर जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी कौम पाक फौज की पुश्त के ऊपर खड़ी हुई है। बुज़दिल भारत ने बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया, इसके लिए शर्म का मकाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से दुश्मन दुम दबाकर भाग निकला। भी आदाब होते हैं, दुश्मन भी हो तो वो कम ज़र्फ ना हो, एक उनके लिए शर्म का मकाम है। भारतीय जारियत थी, उसका पाकिस्तान ने कई गुना ज्यादा जवाब दिया है। हमने तो आपके जंगी जहाज लड़ाका त्यारे गिराए, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। अब ये सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं। इंडियन मीडिया ने आज शिकस्त तस्लीम की है, अपने जहाजों का मलबा दिखाया है। कि कात का तो पाकिस्तान ने कहा था ना, जब हमला इन्होंने किया तो उससे भी भागे, वो बदनीति के साथ आए थे, मगर जब दौड़ने पे आए हैं तो फिर दुम दबा के। भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। तुर्क सफीर ने वज़ीर खारजा इसहाक डार से हंगामी मुलाकात की। कहा इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे। तुर्क सफीर ने हमले में अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती के खदशात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन ने ताउन बरकरार रखने के आज़म का इआदा किया। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फदान ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन भी किया। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और बेगुनाह शहरियों की शहादत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर खारजा हाकान फदान ने इस मौके पर पाकिस्तान से तुर्की की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया और इलाकाई सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा हालात पर करीबी राब्ते में रहने और बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान में हमले करना महंगा पड़ गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। कहा दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चीन ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले को अफसोसनाक करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों फरीकों पर जोर देते हैं अमन के वसी तर मफाद में काम करें। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सूरत हाल पर चीरा न होने दें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख
عبداللہ بن زائد ال نہیان نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں، کشیدگی روکیں، اسے مزید بڑھانے سے گریز کریں، جس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے جنوبی ایشیا میں مزید علاقائی کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا سفارتکاری اور مذاکرات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا مزید کہنا تھا متحدہ عرب امارات علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے حصول کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ممکنہ بھارتی سائبر حملوں سے بچاؤ کے حوالے سے سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کا الرٹ جاری، شہریوں کو سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔ سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کا کہنا ہے شہری سوشل میڈیا پر سائبر حملوں سے متعلق افواہیں پھیلانے سے گریز کریں، غیر تصدیق شدہ میسجز، مشکوک ای میل، سوشل میڈیا لنکس نہ کھولیں، ایمرجنسی میں ضروری معلومات کے لیے سرکاری ذرائع پر انحصار کیا جائے، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی افواہوں سے محتاط رہیں۔ ٹیم سائبر حملوں سے بچاؤ اور صورتحال کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان پر حملے میں بھارت کے رافیل طیاروں کی تباہی سے فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے حصص کی قیمت گر گئی۔ ڈسالٹ ایویشن کے حصص کی قیمت 1.64% گر گئی۔ گزشتہ 5 دن کے دوران کمپنی کے شیئرز کی قدر میں 3.4% اضافہ ہوا تھا۔ بھارت نے گزشتہ ماہ 26 رافیل M جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔